السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، اور تمام دشمن رسول غدار رسول جوتے کی نوک پر۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ میرے سر کے تاج ہیں، جو دیو کے بندے ہیں وہ جوتے کی نوک پر۔ آپ تمام حضرات نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کے مفتیوں کی حقیقت اس چینل سے آپ کو سننے مل جائے۔ وہابی دیوبندی اپنے کفر کو اپنے منہ سے اگل دیتے ہیں، بعد میں ان کو پھر جب احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا تو گالیاں بکواتے ہیں، دھمکیاں دلواتے ہیں، گنڈے موالیوں سے بدتمیزی کراتے ہیں۔ جو ان میں اچھے اچھے پوسٹ والے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ اس کو روکو کسی طرح سے۔ کوئی پولیس والا بن کے آتا ہے، کوئی داروغہ بن کے آتا ہے، کوئی کچھ بن کے آتا ہے، کوئی کچھ بن کے آتا ہے، کوئی گریجویٹ بن کے آتا ہے۔ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو کام کر رہا ہوں انشاءاللہ میں آخری دم تک کرتا رہوں گا۔ مجھے کسی کی دھمکی سے کوئی ڈر نہیں ہے، بس تمام مومنوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات اس ناچیز کے لیے دعا فرمائیں، اور وہابیوں دیوبندیوں کے اندر جو زہر ابل رہا ہے، اور جو میں ان سے وہ زہر اگلواتا ہوں، بس اس کو آپ حضرات اس چینل سے سنتے رہیں۔ نور حسن رضوی نیٹ ورک ایسا چینل ہے جو ہمارے اوپر لگایا ہوا الزام میں انہی کے گلے میں ڈال دیتا ہوں، میں انہی کے گلے میں فٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہیلو ہلو، جی جی حضرت۔ حضرت، میرے ساتھ وہ بچے ساتھ میں، آپ ان کو تھوڑا بتائیں گے کہ وہ کتنے گندے لوگ ہیں؟ اچھا اچھا، لیو بات کریے بات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی خیریت؟ الحمدللہ۔ جی کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ ہمارا نام فیضان ہے۔ فیضان؟ ہاں۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ، بہت اچھا نام ہے بھائی۔ کہاں سے ہو؟ ہم چندیری سے ہیں۔ اچھا، چندیری سے ہیں۔ صادق بھائی کے اسٹوڈینٹ ہیں۔ اچھا اچھا، صادق بھائی آپ کو پڑھاتے ہیں؟ جی۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ تو کیا آپ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں کیا؟ 2-3 جنے بلانے ضرور روز آتے ہیں جماعت مماعت، جی، مگر میں جاتا نہیں ہوں۔ آپ 2-3 رائے دیتے ہیں۔ اچھا۔ تو آپ ان تبدیلی جماعت والوں کے عقیدے سے واقف ہیں بھائی جان؟ نہیں نہیں نا؟ نہیں۔ یہ آپ کے نبی کے دشمن ہیں، جی۔ یہ آپ کے ایمان کے لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں۔ یہ آپ کو نماز کے نام پر آپ کا ایمان لوٹنے لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا۔ جی، پتہ ہے ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا؟ آپ کو نماز کے نام پر لے کے جا رہے ہیں نا؟ جی ہاں۔ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے صراط مستقیم۔ ہاں۔ ان کے بڑے ابو کا نام جس نے وہ کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے اسماعیل دہلوی۔ اچھا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا معاذ اللہ کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور اسی طرح شیخ بزرگ پھر حضور کا نام لیا معاذ اللہ کہ معاذ اللہ چاہے رسالت معاب ہی ہوں، سمجھے، چاہے حضور کا ہی خیال کیوں نہ ہو، انہوں نے ایسا لکھا اس میں، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ چاہے رسالت معاب ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں ڈوبنے سے برا ہے، مستغرق ہونے سے برا ہے، معاذ اللہ۔ بتائیے، یعنی ایک طرف گدھے اور بیل کا خیال، ہاں ایک طرف زنا کا خیال، ایک طرف اپنی بیوی سے ہم بستری کا خیال۔ جی۔ اگر یہ سب نماز میں آ جائے تو چلے گا ان کے نزدیک، ہاں ہاں مگر اگر حضور کا خیال آ گیا تو نہیں چلے گا۔ ہاں، اپنے بالکل گدھے اور صحیح ہے۔ بیل کے خیال میں ڈوبنے سے برا ہے، برا بتایا حضور کے خیال کو۔ ہاں ہاں کہاں گدھا اور بیل، کہاں میرے آقا کا خیال؟ بے شک۔
बताइए, इन देवबंदियों के ऊपर तौबा फर्ज है, नमाज फर्ज नहीं है। समझे मिले भाई? हैं, हमारे दोस्त भी उनके साथ मिले हैं, हम उनको रोकने की कोशिश तो करते हैं, वहाँ पे रुकते ही नहीं। हाँ, मैं पूरी बातें बताऊंगा इंशाल्लाह, बस खाली ध्यान से सुनते रहना। जी। जो भी तब्दीली जमात में जाते हैं वो तब्दील होने जाते हैं, हाँ। यानी चेंजिंग उनके अंदर आ जाती है। जो भी तब्दीली जमात में 1 बार 2 बार 3 बार चला जाता है उसके अंदर चेंजिंग आनी ही आनी है, यानी अपने ईमान को बर्बाद करने लगता है। हाँ सर। पहले फातिहा दरूद नियाज मिलाद वाला होता है, बाद में फिर इन चीजों को बिदअत कहने लगता है। समझे हजरत? हाँ जी। और कहता है कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाला काम है। हाँ कहते हैं ना जी। अब मैं आगे की और बात बताने वाला हूँ जो बात रह गई है। इन्होंने हमारे नबी के ख्याल को माज़अल्लाह गधे और बैल के ख्याल से बदतर बताया। फिर आगे लिखा कि बुजुर्गों का ख्याल नमाज में ताजीम के साथ लाना, है ना? हाँ। ये माज़अल्लाह शिर्क की तरफ खींच ले जाता है। समझे भाई? हाँ भाई। बुजुर्गों का ख्याल नमाज में लाना ये शिर्क की तरफ ले जाता है। क्या माज़अल्लाह अगर किसी को हुजूर का ख्याल आ गया तो क्या मुशरिक हो गया वो बंदा? अब ये कहते हैं कि भाई नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, रसूलुल्लाह के लिए नहीं, तो ख्याल अल्लाह का होना चाहिए, रसूलुल्लाह का नहीं। सही है, ये कहते हैं। तो अब इसके 3 तरीके हैं। समझे भाईजान? हाँ भाई। इसके 3 तरीके हैं और तीनों तरीके मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। ठीक है जी। पहला तरीका तो ये है कि या तो जितने भी बदमज़हब बदअक़ीदे देवबंदी हैं, वहाबड़े हैं, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद सलाम भेजना ही छोड़ दें, नमाज में तशहुद पढ़ना छोड़ दें। क्या हुआ? मशीन थोड़ा बंद कीजिए भाईजान। उठ गया, सब सामान आ गया जी। समझे भाई? हाँ हाँ। और जब ये लोग तशहुद नहीं पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि तशहुद पढ़ना वाजिब है। हाँ। ठीक है जी। अब दूसरी बात, 2 जो बातें रह गई हैं वो भी बताता हूँ। हर देवबंदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में सलाम करता है। हाँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करना छोड़ दे। हाँ। ठीक है जी जी। अच्छा, जब किसी को सलाम किया जाता है तो क्या उसका भाई मशीन बंद कीजिए, वो ये बंद कीजिए, क्या नाम है, म्यूट लगाइए जी। समझे भाईजान? हाँ। जब किसी को सलाम किया जाएगा तो यकीनन उसका ख्याल आएगा। जी। ऐसा हो नहीं सकता कि हम किसी को सलाम भेज रहे हैं उसका ख्याल नहीं आए। आएगा ना? जी। तो अब मैं देवबंदियों से पूछना चाहता हूं कि तुम जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में सलाम भेजते हो, तशहुद पढ़ते हो, तो तुम सलाम जो भेज रहे हो ताजीमन या तहकीरन? तहकीर की नियत यानी तौहीन की नियत से या ताजीम की नियत से? समझे भाई? हाँ। अगर ताजीम की नियत से तुमने हुजूर को सलाम किया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो इस्माइल देहलवी के कौल से ये मुशरिक हो गया। जी हाँ। और अगर माज़अल्लाह तौहीन की नियत से इन्होंने सलाम किया, समझे, तौहीनी नजरिए से सलाम किया, तो ये काफिर हो गया। ठीक है जी। नमाज के बाहर हो या नमाज में, ठीक है, हाँ। नमाज में हो या नमाज से बाहर, अंबिया की शान में जरा बराबर तौहीन, जरा बराबर तौहीन कुफ्र है। किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में ये लोग मोमिन नहीं। इन लोगों पर नमाज फर्ज नहीं, तौबा फर्ज है।
हाँ हाँ भाई आपको नमाज के नाम पे लेके जा रहे हैं ना? जी जी हाँ इनकी किताबों में खुद लिखा है कि माज़अल्लाह हुजूर का ख्याल नमाज में लाना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है, बुरा है माज़अल्लाह। तो क्या ऐसे लोगों की नमाज होगी? नहीं नहीं होगी ना। नहीं तो फिर ऐसे लोगों के साथ जाने से फायदा क्या होगा? अपना ईमान बर्बाद करना होगा। बेशक। अच्छा, अब दूसरी बात सुने। सहाबा इकराम का अकीदा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने गैब का इल्म अता किया। हमारे नबी गैब का इल्म जानते हैं, आने वाले वक्त की खबर हमारे नबी को हासिल है ना? समझ रहे हैं भाई? जी जी हाँ छुपा हुआ इल्म, छुपा हुआ राज अल्लाह ताला ने अपने हबीब को बताया है, अता किया है। मगर इन सड़े हुए बदबूदार शैतानों का, वहाबियों का, देवों के बंदरों का ये अकीदा है माज़अल्लाह कि हुजूर को गैब का इल्म हासिल नहीं। जी समझे? जी हाँ मगर जब हमसे बात करते हैं ना तो उसमें डंडी मारते हैं, पचड़ी लगाते हैं। समझे? जी कुल हाँ कुल और बाज की, कुल और बाज की ये पचड़ी लगाते हैं। बहरहाल उससे कोई फायदा हासिल नहीं होगा। मैं तो ऐसा इनको लटका देता हूँ उल्टा कि अच्छे अच्छे का पसीना निकाल देता हूं मैं। जी जी अच्छा, दूसरी बात ये कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी नूर नहीं सिर्फ बशर हैं, और माज़अल्लाह कहते हैं हमारी तरह बशर। समझे भाई? जी जी कहते हैं माज़अल्लाह के नबी तो हमारी तरह बशर हैं, हम नबी की तरह बशर हैं। अबे मई जून की गर्मी में तुझे पसीना आए तो तेरी माँ और तेरी बीबी तेरे पास बैठने को जो है राजी ना हो, वो तुझसे घिन खाए कि जा नहा के आ पहले, बदबू आ रही है। तू कहता है माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है। कालिया भंडारी, हाँ हाँ है ना? जी मगर मेरे नबी का जो पसीना है ना, उसको लोग अपने घरों को ले जाया करते थे। बेशक गुलाब को इत्र, फीका पड़ जाता था। जी, इत्र की जगह लगाते थे। जिसने मेरे नबी का पसीना लगा लिया उसके बदन की खुशबू खत्म नहीं हुई। और जब मेरे आका की किसी को तलाश होती, समझे, जी तो मतलब गलियों में महक सूंघता जाता। मेरे आका जिधर को निकलते थे महक आती थी, खुशबू आती थी। समझे हजरत? हाँ जी ये सहाबा इकराम का अमल है, तरीका है। खुशबू से पहचान कर लिया करते थे कि मेरे आका इधर गए। अच्छा, दूसरी बात, इन लोगों ने कहा माज़अल्लाह कि अब भी नबी पैदा हो सकता है। समझे भाई? और इन्होंने ये भी कहा माज़अल्लाह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना ये अवाम का ख्याल है। जी क्या ये आलिमों का ख्याल नहीं है? क्या ये आलिमों का अकीदा नहीं है? जी आलिमों का अकीदा भी यही है और अवाम का अकीदा भी यही है। अवाम को कब पता चला? जब आलिमों ने बताया। जी जी हाँ है ना? जी आलिमों ने बताया तभी तो अवाम को पता चला। मगर ये कहते हैं कि हुजूर को आखिरी नबी मानना ये अवाम का ख्याल है। अहले फहम पर रोशन होगा कि तकद्दुम या ताखुरी जमाने में बिलजात कुछ फजीलत नहीं। अहले फहम यानी दानिशमंद लोग, होशमंद लोग, अक्लमंद, इल्म वाले, आलिम लोगों को इन्होंने यहाँ एक तरफ कर दिया और अवाम को एक तरफ कर दिया। अवाम के लिए कहा कि ये अवाम का ख्याल है कि हुजूर आखिरी नबी हैं। अहले फहम पर रोशन होगा कि हुजूर आखिर में आए या शुरू में आए, कोई फजीलत नहीं। ये अवाम का ये दानिशमंद लोगों का, आलिम लोगों का ख्याल बताया। अहले फहम जी बताइए। अरे नूरतन भाई जी मुझे क्या है कहीं पे जाना है तो इंशाल्लाह मैं आपने बहुत अच्छा समझा दिया। मैं आपको फिर कभी या कल शाम को दोबारा इंशाल्लाह जरूर बात कराऊंगा आपकी। ठीक है हजरत? अच्छा हजरत, क्या मुझे अर्जेंट काम से जाना है। हाँ बोलिए। अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक है,
चले जाइए, बाद में बात करा दीजिए, मैं बहुत बात कुछ इनको मैंने बताने वाला हूँ तसल्ली के साथ, प्यार मोहब्बत से, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ठीक है, मैंने इनको बाकी सब आपके चैनल के बारे में बताया, ये इंशाल्लाह मोबाइल पे भी सुन लेंगे और गुफ्तगू। ठीक है हजरत। तो ये आपके पास में है या अलग अलग मोबाइल से बात हो रही है? नहीं, ये साथ में है हमारे, मतलब हम इनके मोहल्ले में आए हैं, हमने बोला था ना आपको कि मैं वहाँ पे जाऊंगा कल, इसीलिए मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। आपको मैं कॉल बहुत देर से लगा रहा था, लेकिन आपकी कहीं गुफ्तगू चल रही थी। हाँ हजरत, एक भाई से गुफ्तगू हो रही थी, बातचीत चल रही थी। ठीक है हजरत, मैं आपको लगाता हूँ कॉल। ठीक है, ठीक है हजरत, चलिए इंशाल्लाह फिर कभी वक्त मिला तो इंशाल्लाह बात होगी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।